आज हम लोग वचन 8 से लेकर के 16 तक हम लोग अध्ययन करेंगे। हम आपके लिए पढ़ते हैं फिलेमोन 8वां वचन से लेकर 16 वचन तक। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हैं, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करो। मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वो तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के काम का है। उसी को, अतः जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी ये कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वो तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। इसको इधे नान हिंदी तमिल वासिக்கிறேன்। பிலேமோன் நிருபம் 8வது வசனத்திலிருந்து 16வது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கிறேன்। ஆகையால் பவுலாகிய நான் முதிர் வயதுள்ளவனாகவும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் இப்பொழுது கட்டப்பட்டவனாகவும் இருக்கிறபடியால், நீர் செய்யத்தக்கதை உமக்கு கட்டளையிடும்படிக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் நான் துணியத்தக்கவனாயிருந்தாலும் அப்படி செய்யாமல் அன்பின் நிமித்தம் மன்றாடுகிறேன்। என்னவென்றால், கட்டப்பட்டிருக்கையில் நான் பெற்ற என் மகனாகிய ஒனேசிமுக்காக உம்மை மன்றாடுகிறேன்। முன்னே அவன் உமக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதவன், இப்பொழுதோ உமக்கும் எனக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவன்। அவனை நான் உம்மிடத்திற்கு அனுப்புகிறேன்। என் உள்ளம்போல் இருக்கிற அவனை நீ ஏற்றுக்கொள்ளும்। சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிற எனக்கு ஊழியம் செய்யும்படி உமக்கு பதிலாக அவனை என்னிடத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இருந்தேன்। ஆனாலும் நீ செய்யும் நன்மையை கட்டாயத்தினால் அல்ல, மனப்பூர்வமாய் செய்யத்தக்கதாக நான் உம்முடைய சம்மதி இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய எனக்கு மனதில்லை। அவன் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவனாய் இருக்கும்படிக்கும், இனிமேல் அவன் அடிமையானவனாக அல்ல, அடிமையானவனுக்கு மேலானவனாகவும் பிரியமுள்ள சகோதரனமாக இருக்கும்படிக்கும் கொஞ்ச காலம் உம்மை விட்டு பிரிந்து போனானாக்கும்। எனக்கு அவன் பிரியமான சகோதரன் ஆனால், உமக்கு சரீரத்தின் படியையும் கர்த்தருக்குள்ளும் எவ்வளவு பிரியமுள்ளவனாய் இருக்க வேண்டும்। आज हम लोग इस अंश में 5 बातों को देखने जा रहे हैं। நான் வாசித்த இந்த வேத பகுதியிலிருந்து நாம் 5 காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம்। पहले 8 और 9 का हम पढ़ते हैं। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करो। पौलुस कहता है फिलेमोन को, मुझे मसीह में साहस है कि जो बात ठीक है
उसकी आज्ञा तुझे दो, मैं तुमको आज्ञा दे सको। तो भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करो। என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் 8வது வசனம் 9வது வசனத்தில், பவுலாகிய நான் நீ செய்யத்தக்கதை உமக்கு கட்டளையிடும்படிக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் நான் துணியத்தக்கவனா, எனக்கு துணிச்சதற்கு உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு, கட்டளை கொடுப்பதற்கு, ஆனாலும் கூட அன்பு நிமித்தம் மன்றாடுகிறேன்। जब आज्ञा देने के लिए इसका पास साहस है, इसके पास हक है, लेकिन हमारे पौलुस कहता है मैं उसको लागू नहीं करूंगा, मैं तुमको आज्ञा दूंगा नहीं, लेकिन तुझसे मैं विनती करूंगा। நான் உமக்கு கட்டளை கொடுக்க மாட்டேன், நான் உம்மிடத்தில் மன்றாடுகிறேன், अनबी निमित्तम मन्नाडुगिरेन। पौलुस की बात हम देखते हैं, पौलुस क्यों ऐसा कहता, मुझे साहस है आज्ञा देने के लिए, நான் உமக்கு கட்டளை இடும்படிக்கு எனக்கு துணிச்சல் இருக்கு அவர் சொல்வதற்கு என்ன காரணம்? मैंने कहा पौलुस के द्वारा ही फिलेमोन प्रभु में आया, பவுல் மூலமாகத்தான் பிலேமோன் ஆண்டவருக்குள் வந்தார், விசுவாசியானார், புற ஜாதியிலிருந்து அவர் விசுவாசியானார்। एफेसु में जो 3.5 साल, मेरे ख्याल 3.5 साल वहां रह करके जब सेवा करते थे, तो पूरा एशिया माइनर को सुसमाचार सुनाया गया मात्र 12 लोगों के द्वारा। उस वक्त में ही दूसरे शहर कुलुसे से आकर के फिलेमोन और वहां के एपाफ्रोदीतु दोनों जन इनसे सुसमाचार सुने, या सुसमाचार सुनने के कारण इनके पास चने आए, इनसे वो दृढ़ हुए वचन में, और उन लोग अपने घर लौटे। फिलेमोन के घर में कलीसिया का स्थापना हुई, एपाफ्रोदीतुस उसका पादरी साहब बन गया। எபேசுவில் 3 அல்லது 3.5 வருஷங்கள் பவுல் ஊழியம் செய்த நாட்களிலே ஆசியா எங்கும் 12 பேர் மூலமாக சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்பட்டது। எல்லோரும் கேட்டார்களாம், கிரேக்கர் யூதர் என்று அனைவரும் கேட்டார்கள்। அவர்கள் ஒருவர் பிலேமோன், இன்னொருவர் எப்பாப்ரோதீத்துஸ், இந்த 2 பேருமே வேற நகரத்தில், கொலோசே நகரத்திலிருந்து இங்க வந்து கேட்டாங்க। இவர மூலமா ஆண்டவருக்குள்ளாய் பலப்பட்டாங்க, விசுவாசிகளானாங்க। அவங்க ஊருக்கு போய் எப்பாப்ரோதீத்தும் இவரும் சேர்ந்து ஊழியத்தில் ஒரு சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டது, அது இவருடைய வீட்டில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது। அதனுடைய பாஸ்டராக மேய்ப்பனா எப்பாப்ரோதீத்து இருக்கிறார்। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, पौलुस फिलेमोन के लिए आत्मिक पिता है। இந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல பவுல் फिलेमोனுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பன் नंबर 1। नंबर 2, वो उनका आत्मिक पिता ना केवल आत्मिक अगुवा भी है, அவர் ஆவிக்குரிய தகப்பன் மாத்திரமல்ல, அவருக்கு ஆவிக்குரிய தலைவனும் கூட। तीसरा क्या है, பவுல் कहता अपने बुढ़ा। மூன்றாவது காரியம், அவர் இவர் மேல அதிகாரம் செலுத்துவதற்கு, கட்டளை கொடுப்பதற்கு துணிச்சல் கொள்ள மூன்றாவது காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவர் சொல்லுகிறார் मुदिर वयदुल्लवन என்று तने சொல்லுகிறார்। देखते हैं हमारे पौलुस कितना उम्र होगा, लगभग उनका 60 के आसपास है। मेरे ख्याल से, मेरे अध्ययन के अनुसार है, पंडित लोग 53 से लेकर के 63 तक हुआ होगा बोलते हैं पंडित लोग। लेकिन मैं कई चीजों को अध्ययन करने के कारण हमको समझ में आता है 58 से लेकर के 63 के बीच में उनका उम्र होगा। तो
முதிர் வயது அப்படின்னு இங்க அவர் சொல்லுவத பண்டிதர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா 53 63 வயதுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. நான் சில வேத என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்டடி பைபிள் கமெண்ட்ரி பார்க்கறதுலேருந்து நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, என்னுடைய கணக்குப்படி 58 63 வயசு தான் அவருக்கு இருக்கும். क्या ये बूढ़ा है, ये बुढ़ापे हैं, இது मुदिर वयदा हमारे एज का अनुसार, मतलब हमारे युग के अनुसार ये बुढ़ापे नहीं है. நம்முடைய காலத்தின் படி இந்த கோணத்தை பார்த்தா 58 63 வந்து ஒரு முதிர் வயது கிடையாது. ஏன்னா कॉलेज में स्कूल में टीचर का क्या रिटायरमेंट एज है पता है? கல்லூரியிலும் பள்ளிக்கூடங்களிலும் ஓய்வு பெறக்கூடிய வயசு என்ன அரசாங்கம்? 60. ओ तमिलनाडु में 60, ये उत्तर भारत में 65 है. एक डॉक्टर का रिटायरमेंट 65. मतलब है सरकार कहती है 65 उम्र तक काम कर सके, इसका मतलब आप बूढ़े नहीं है, हो गया 66 हो गया बूढ़ा चले जाएगा. एनी हो, लेकिन ये क्यों अपने बूढ़ा समझता है? एक जहां में लिखा है ये कमेंट्री में, वो समय से पहले बुढ़ापे में आ गया. मतलब उनका बुढ़ापा जल्द इसलिए आया, 70-80 उम्र तक जितना काम करना है उतना काम को क्या कर लिए 60 के अंदर ही कर लिए, मैच्योर हो गए. लेकिन प्री मैच्योर, इसलिए कहता है आई एम ओल्ड. 80 வயசு செய்ய வேண்டிய வேலையை 60 வயசு செஞ்சு முடிச்சிட்டாராம். ஆகையினால அவர் ப்ரீ மெச்சூர் हो गया. அது சொல்றாரு நான் முதிர் வயது உள்ளவன். डेविड ब्रेनार्ड करके ये परमेश्वर के दास थे, मिशनरी, जो अमेरिका से वहाँ आदिवासी के बीच में जिन्हें बोलते हैं रेड इंडियंस बोलते हैं. हिंदी पता नहीं क्या बोलते हैं, लाल भारतीय नहीं बोलेंगे, लाल इंडियन है. सो वो रेड इंडियन ट्राइब्स के बीच में जब वो गए, मेरे ख्याल से 24 से 25 उम्र में गए थे और 29 उम्र में वो मर गए टीबी के कारण. हाँ, उनके बारे में लियोनार्ड रॉबिनहिल का के बहुत बड़ा पारमिक दास अपने पुस्तक में यूं लिखा है, वो 29 उम्र में पूर्ण आयु के होकर के मर गए. मतलब जिसको लोग पूर्ण आयु समझते हैं या दीर्घ आयु समझते हैं, उतने उम्र में एक व्यक्ति क्या कर सकता है परमेश्वर के लिए, उसको वो 29 उम्र में ही करके वो मर गए हैं. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तुमको? ठीक. सो डेविड ब्रेनार्ड भी 29 उम्र में बूढ़े होकर मर गए. इसका मतलब है मैच्योर, जो करना उतना कर लिए. டேவிட் பிரெய்னார்ட் என்கிற மிஷனரி செபிந்தியர் மத்தியில் அமெரிக்காவிலிருந்து போகும் பொழுது 24-25 வயசுல போனார். 29 வயசுல மரிச்சிட்டார் டிபியின் காரணமாக. லியோனார்ட் ராபின்ஹில் என்கிற ஒரு பெரிய பரமேஸ்வருடைய ஆண்டவருடைய தாசன் தன்னுடைய புஸ்தகம் எழுப்புதல் தாமதிப்பது ஏன்களை எழுதி இப்படி இருக்கிறார், டேவிட் பிரெய்னார்ட் 29 வயதுல பூரண ஆயுதுள்ளவராய் மரித்தார் என்று சொல்லி. என்ன சொல்ல வரானா, பூரண வயசுல தீர்க்க ஆயுசு வரைக்கும் ஒரு மனிதன் இருந்து என்னவெல்லாம் செய்ய முடியுமோ கர்த்தருக்கு அது 29 வயசுலேயே செஞ்சு முடிச்சிட்டார். 4 வருஷம் 5 வருஷம் செஞ்சு முடிச்சிட்டாரு. अद मादिरी தான் பவுலும். सो बुढ़ापे के कारण फिलेमोन बूढ़ा नहीं था, एपाफ्रोदितुस बूढ़ा नहीं था. बोला आई एम एज्ड, आई कैन कमेंड यू, आई हैव बोल्डनेस. मुझे साहस है तुम्हें आज्ञा देने की. நான் முதிர் வயதுள்ளவனா இருக்கிறபடியினால, நீ இளையவனா இருக்கிறபடியினால உனக்கு கட்டளையிடும்படி எனக்கு துணிச்சல் இருக்குது. दिस इज द थर्ड रीजन. ये तीसरा रीजन. चौथा रीजन क्या है? वो बोल रहा है मैं
सुसमाचार के निमित्त कैसा है, बांधा हुआ हूं. மூன்றாவது காரியம் என்ன சொல்லுகிறார், நான் சுவிசேஷத்தை நிமித்தம் கட்டப்பட்டவனாய் இருக்கிறேன். सो मुझे इसलिए हक है तुमको कुछ बोलने के लिए, मेरे लिए कुछ करो. நான் கட்டப்பட்டவனாய் இருக்கிறபடியால் சுவிசேஷத்தை நிமித்தம் உனக்கு கட்டளையிடுவதற்கு எனக்கு என்ன இருக்குது, உரிமை இருக்கிறது, தைரியம் இருக்கிறது, துணிச்சல் இருக்கிறது. உனக்கு நான் கேட்க வேண்டிய செய்யணும். ஸோ இந்த பின்னணியில தான் அவர் எழுதுகிறார். நான் உனக்கு சொல்ல முடியும், बावजूद भी ஆனாலும் मैं तुमको आज्ञा नहीं दूंगा, मैं इसको छोड़ देता. बोलता है ना सरकार, सिलेंडर को क्या करो, सब्सिडी को छोड़ दो. बोलता है नहीं बोलता है? बोल बोल के देखा जरा हम लोग छोड़ा है तो छीन ही लिया है ना. सी இவர் சொல்லுகிறார், நான் விட்டு விடுகிறேன், என்னுடைய உரிமையை விட்டு விடுகிறேன். मैं अपने हक को छोड़ देता हूं. विनती करूंगा प्यार से, प्रेम से. मैं अன்பு நிமித்த உன்னிடத்துல மன்றாடுகிறேன். மன்றாடுகிற मतलब क्या है, प्लीज प्लीज. जब प्लीज की आवश्यकता नहीं है, प्लीज தயவு செய்து என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாத இடத்துலையும் தயவு செய்து என்று சொல்லுகிறார். ओनेसिम उसको भेजना है, इसलिए इतना करता है. सो आप और हम क्या करने की आवश्यकता है, हम लोग भी घर में जो सीनियर हैं अपने जूनियर को आज्ञा दे सकते हैं. बेटा उठो, बेटा बैठो, बेटा वो काम करो, ये बोल सकते हैं. लेकिन बेटा करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं है. रहेगा तो मन करेगा तो करेगा, नहीं तो करेगा भी नहीं है. हर बच्चे एक समान नहीं है. पति को पत्नी के ऊपर क्या है, हक है. पापा मम्मी को बच्चों के ऊपर हक है. भैया दीदी को, छोटे भाई छोटी बहन के ऊपर हक है बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, घमंड करने के लिए. टीचर को है अपने स्टूडेंट को ऊपर बोलने के लिए. सीनियर को है जहाँ काम करते हैं जूनियर को ऊपर जताने के लिए अधिकार. लेकिन परमेश्वर विश्वासियों से क्या कहने के लिए चाहता है, हमारे पौलुस के द्वारा अपना हक थोड़ा छोड़कर तो देखो, वहाँ प्यार से बोल करके देखो. கணவனுக்கு மனைவி இடத்திலையும், பெற்றோர்களுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும், மூத்தவர்களுக்கு இளையவர்களிடத்திலும், வேலை பார்க்க இடத்துல ஆசிரியர்கள் மாணவிகளிடத்திலும், சீனியர்கள் ஜூனியர்களிடத்திலும் அதிகாரம் செலுத்துவதற்கு அவங்க என்ன இருக்குது, உரிமை இருக்கிறது. ஆண்டவர் பவுல் மூலமாய் விசுவாசிகளுக்கு சொல்லுகிறது என்ன, கிறிஸ்தவர்களுக்கு சொல்லுவது என்ன, मसीहियों के लिए बाइबल के द्वारा प्रभु क्या कहने के लिए चाहता है, बिट्टू कोडु उन्होंने अधिकारத்தை விட்டு கொடுக்க. अनबाल वेले वांगनमा. मैं तो हमेशा मेरे बच्चों को डांटते रहता हूँ, कमांड करके क्या कहता वो करेगा करो. अब मुझे भी सुधारना पड़ेगा. आज से लेके बच्चों को, बेटा प्लीज, ग्लैडिस प्लीज, दीदी को बोलना पड़ेगा मैडम प्लीज. सचमुच में ऐसा हम करेंगे, मेरे घर में बहुत अच्छा रहेगा. मेरे ही घर में ना, आप लोग अपने घर में करेंगे तो वहाँ भी अच्छा रहेगा. तो आज पौलुस यही हमें सिखाता है. आपको पता है आपको यीशु मसीह क्या कहता है, मत्ती में 20:25. यीशु ने उनके पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं. புறஜாதியாருடைய அதிகாரிகள் அவர்களை இருமாப்பாய் ஆளுகிறார்கள்.
பெரியவர்கள் அவங்க में கடினமாய் அதிகாரம் செலுத்துகிறார்கள். बाइबल में हमारे प्रभु का जो क्रिश्चियन नहीं है, मतलब यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, वे अपने अधिकार को जताते हैं. क्यों उनके पास अधिकार है? प्रभु ये नहीं कहता उनके पास अधिकार नहीं है. दे हैव द पावर, दे हैव द अथॉरिटी. उनके पास अधिकार है. वे उसको क्या करते हैं? जताते हैं, प्रभुता करते हैं. वो गलत करके यहाँ नहीं बताता परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों से, अपने अनुयायी से कहता है तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए. तुम अधिकार नहीं जताना चाहिए, तुम प्रभुता नहीं करना चाहिए अपने जूनियर के ऊपर. புற ஜாதிகள் அப்படி இருக்கலாம், அதிகாரம் இருக்குது, கொடுக்கப்பட்டு அவங்க செய்றாங்க. ஆண்டவர் அதை தப்புன்னு சொல்லல. ஆனா தன்னை பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? உங்களுக்குள்ளே அப்படி இருக்கக்கூடாது, நீங்க அப்படி செய்யக்கூடாது. உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு ஜூனியர் மேல, அதிகாரம் செலுத்துவதற்கு டோன்ட் டூ, அப்படி செய்யாதே. सर अंगे पनी चाहिए, वहां सेवा करो. अपने का प्रभु कहता है. ये बोलने के बाद यीशु मसीह किया, 12 लोगों बैठा करके इनको क्या किया? यीशु मसीह सेवा किया. गमछा आपने कमर में बांध करके इन लोगों का पांव धोने लगा. ये है सही अगुवेपन. अधिकारी अपने सीट से उतर के नीचे जाना है, जो दुनिया में नहीं होता है. सो आप और हम इसको करने की आवश्यकता है. ஆண்டவரும் இடுப்புல துண்டை கட்டிக்கிட்டு தன்னுடைய 12 சீஷர்கள் காலை கழுவினார். அதாவது போதகரும் ஆண்டவருமாகிய நான் அப்படி. ஸோ ஆண்டவரே தன் இடத்தை விட்டு இறங்கி போயிருக்கிறார். அப்படின்னா அவரை பின்பற்றுகிற நீங்களும் நான் அப்படி செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம். जब आदम ने पाप किया, क्या ढूंढा परमेश्वर को? हम गलत कर दिए, नंगन हो गए, हमको चाहिए कपड़ा, मेरा फेल हो गया प्रयास, बताया, ढूंढा. जब ஆதாம் பாவம் செய்த பொழுது அவன் ஆண்டவரை தேடவில்லை, ஆண்டவரிடத்தை ஓடவில்லை, தனக்கு வஸ்திரம் வேண்டும் என்று அவன் அவரிடத்தில் கேட்கவில்லை. परंतु परमेश्वर चले आया. आंडवर தான் அங்க வந்து சேர்ந்தார். स्वर्ग से वही उतर के आया. परमेश्वर को पता है ये भाग रहा है, ஆண்டவர் தேன் ஓடுறானு. அப்படி ஆண்டவர் விட்டாரா? जा प्रभु से छोड़ दिया. आदम तू कहाँ हो? तड़प रहा है. ஆதாமே எங்க இருக்கிறான் அவர் என்ன செய்றாரு? பதைக்கிறார் அவனை தேடி. அவர் தெரியும் ஓடுதான். திஸ் இஸ் காட் ஆஃப் பைபிள். இதுதான் வேதம் காட்டும் தேவன். परमेश्वर के पास हथियार हैं क्या? நம்முடைய தேவனிடத்திலே ஆயுதங்கள் இருக்கிறதா? नो. पिता परमेश्वर के पास है, ना यीशु मसीह के पास है, ना पवित्र आत्मा के पास है. பிதாவாகிய தேவனிடத்திலும் ஆயுதம் இல்லை பயமுறுத்தும்படி, இயேசுவினிடத்திலும் ஆயுதம் இல்லை பயமுறுத்தும்படி, ஆவியானவரிடத்திலும் ஆயுதம் இல்லை பயமுறுத்தும்படி. पिताजी ढूंढ के आया, इंसान भागा. பிதாவாகிய தேவன் வந்தார், இறங்கி அவன் ஓடுனான். यीशु मसीह क्रूस में लटका रहा, अपने को सौंपा, इन लोग मारने दिया. उनको यीशु में धमकी नहीं दिया है, गोली से भी ना हथियार से भी. இயேசு கிறிஸ்து அவங்கள பயமுறுத்தவும் இல்லை, வாயாலையோ வார்த்தையாலையோ ஆயுதத்தினால பயமுறுத்த கூட இல்லை. पवित्र आत्मा बाइबल क्या बताते हैं याकूब में? धून के साथ हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है. डराता नहीं, ऐसा करेगा तो हम निकल जाएंगे, ऐसा बोलता है पवित्र आत्मा. इतना भी हम लोग पाप करते हैं.
तो भी वो बहुत धीरे धर कर हमारे अंदर क्या करता है, रखता है। वो हमसे क्या करता है, संघर्ष करता है। बेटा ऐसा नहीं करना, बेटे ऐसा नहीं करना है, डराता नहीं है। ஆவியானவரும் வைராக்கியமாக நம்ம கூடிக்கொண்டிருக்கிறாராம். நம்ம பாவம் என்ன செஞ்சாலும் சீக்கிரம் பணம் கொண்டு போக மாட்டார் அவர். அதனால் பயமுறுத்த மாட்டார். ஏய் இப்படி செஞ்சால் ஓடிய பிறன் ஆண்டு ஆவியான ஒருத்தட்டே சொல்றது கிடையாது. வைராக்கிய வாஞ்சியாக குடியிருக்கான்னு யாக்கோபு சொல்கிறார். ஏன் அவன் நம்ம நேசிக்கிறார். सो हम लोग क्या करेंगे, अपने अधिकार को गिव अप करके, छोड़ करके प्रेम से काम लेंगे, ट्राई करें. நாம் அதிகாரத்தை செலுத்தாமல் அன்பினால் மற்றவிடத்தில் மன்றாடி அப்பீல் பண்ணி வேலைகளை வாங்க நம்ம என்ன செய்வோம், முயற்சிப்போம். யஹி தோ மசீஹியத் ஹே, இதுதான் கிறிஸ்தவம் என்பது. வேற ஒன்றும் கிடையாது. बाइबल போதிக்கிறது இதுதான். बाइबल इसी चीज को बताता है. ये कैसे धर्मांतरण की बात होगी, எப்படி இது மதமாற்றமாகும், இது மனிதனுடைய மனமாற்றம். ये तो कर्मांतर है, मनुष्य का कर्म को चेंज करना है.